پھر کائنات کے رب نے اپنے نبی کے 1,54,000 صحابہ میں 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ہاں میں نے قرآن میں جب دیکھا تو قرآن میں بھی یہی ترتیب تھی. پہلا نمبر ابو بکر کا والذین معہ، دوسرا نمبر عمر کا اشداء علی الکفار، تیسرا نمبر عثمان کا رحماء بینہم، چوتھا نمبر علی ولی کا تراہم رکعا سجد. اللہ نے ان صحابہ میں بھی 4 کو چن کر سب کا سردار بنا دیا. اس سے بھی آگے چلو، کائنات کے رب نے روئے زمین پر پھر اپنے گھر بھی پیدا کیے. اس کے گھر تو بہت، لیکن اللہ نے اپنے گھروں میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک گھر کو بیت اللہ کہا، ایک کو بیت المقدس کہا، ایک کو مسجد نبی کہا، ایک کو مسجد قباء کہا. پھر ان 4 گھروں میں اللہ نے بیت اللہ کو چن کر اپنے سارے گھروں کا سردار بنا دیا. اسی طرح کائنات کے رب نے اپنے نبی کو بیٹیاں بھی 4 عطا کی. ایک کو جناب فاطمہ کہا، ایک کو جناب رقیہ کہا، ایک کو جناب زینب کہا، ایک کو جناب ام کلثوم کہا. پھر اپنی 4 بیٹیوں میں اللہ نے نبی کی 4 بیٹیوں میں سیدہ کائنات خاتون جنت شو جناب فاطمہ الزہرا کو چن کر نبی کی بیٹیوں کا سردار بنا دیا. پھر کائنات کے رب نے نبی کی امت میں بھی امام بڑے بڑے پیدا کر دیے. امام تو ہر صدی میں آئے، لیکن اللہ نے ان میں بھی ائمہ اربعہ کو چن کر پوری کائنات میں نمایاں کر دیا. ایک کو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کہا، ایک کو اللہ نے امام مالک کہا، ایک کو اللہ نے امام شافعی کہا، ایک کو اللہ نے امام مالک احمد ابن حنبل کہا، ایک کو اللہ نے امام ابو حنیفہ کہا. پھر ان 4 اماموں میں تیرے اور میرے امام امام اعظم ابو حنیفہ کو چن کر ساری امت کے اماموں کا سردار بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن. سلطنہ مولانا محمد یحییٰ صاحب عباسی. میرے دوستو اس سے بھی آگے چلو، مختصر کرتا ہوں، شارٹ کٹ کرتا ہوں. یہ کام جو پہلے کرنے کا تھا وہ بھی کر رہے ہیں بیچارے. اللہ کرے زندگی میں ان کو جلسہ کرنے کی ترتیب سمجھ آ جائے. ہے توجہ؟ سبحان اللہ. جن کی ہے کہہ دو سبحان اللہ. مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ. چوری والے مجنو والی نہ، دیوبند والی سبحان اللہ. میرے دوستو پوری توجہ میں بٹھاؤ یار. وہ کوئی ایک سیاںا بندہ ادھر بیٹھ جائے خدا کے لیے یار. میں تو تقریر بند کر دیتا ہوں راستے میں. میرا یہ مزاج بالکل نہیں، کیونکہ میں وہ پیسے والا ملا کہہ نہیں جو پیسہ پھینک تماشا دے ویلی رکھتے سن کے بھاگے نہ سن. میں نے شروع میں تمہیں کہا میں پتہ نہیں ہلنے دیتا، بندہ ہلے تو میں کیسے دوں. پوری توجہ رکھے، پوری توجہ. شروع میں جلسے کا انتظام کیا کرے اور ان بچوں کو وہاں کونے میں ڈالا کرے. ہمیشہ میں ہر تقریر میں کہتا ہوں یہ آکسیجن بھی چھوڑتے ہیں، شور بھی کرتے ہیں، اٹھک بیٹھک بھی کرتے ہیں. سٹپڑیاں جو گزلے سو سٹپڑی تک 2 کلومیٹر تے پنچرتی رہتی ہے. جن کی ہے توجہ کہہ دو سبحان اللہ. گونج کے کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستو پھر کائنات کے رب نے روئے زمین پر کتابیں بھی بہت ساری نازل کر دی. کتابیں تو 115 123 125 روایات میں مختلف تعداد آئی، لیکن اللہ نے ان میں بھی 4 کتابوں کو چن کر پوری کائنات میں نمایاں کر دیا. ایک کو اللہ نے تورات کہا، ایک کو اللہ نے انجیل کہا، ایک کو اللہ نے زبور کہا، ایک کو اللہ نے قرآن کہا. پھر ان 4 کتابوں میں اللہ نے قرآن کو چن کر ساری کائنات کی کتابوں کا سردار بنا دیا. شان قرآن، شان قرآن، عظمت قرآن. آؤ محمد صحیح والو، کیرول پکا والو، علاقے بھر والو، اب میں تمہیں قرآن کے سمندر کے کنارے پہ لے چلوں. سبحان اللہ، اب میں تمہیں قرآن کا تعارف ذوق عباسی میں کراؤں. سبحان اللہ، اب میں تمہیں بتاؤں یہ قرآن کیا ہے، ہمیں کہتا کیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے. سبحان اللہ، کائنات کے رب نے پوری توجہ میں موضوع اب شروع کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ابھی تک میں نے تمہید باندھ دیا. میرا موڈ تھا 2 گھنٹے بولوں گا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ آدھے گھنٹے میں مجھے بس کرو. آؤ میں تمہاری اس کتاب سے ذرا گپ شپ کراؤں. سبحان اللہ، آؤ اس کتاب سے باتیں کریں. سبحان اللہ، آؤ اس کتاب کی سیر کریں. سبحان اللہ، آؤ اس کتاب کی گلیوں میں چلیں. سبحان اللہ. اللہ نے اپنی اس کتاب کا تعارف بڑے خوبصورت
और जामे माने अंदाज में कराया। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत, इतना मुख्तसर, इतना जामे माने कि समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। मुट्ठी में। सूरह बकरा के शुरू में सुभान अल्लाह ने 3 हरफ बोले, सुभान 2 जुमले बोले। सुभान अल्लाह, 3 हरफ 2 सारे बोलो 2 जुमले। उसी में ही पूरे कुरान का तारुफ करा दिया। सुभान अल्लाह, हरफ कौन से? फरमाया अलिफ लाम मीम। जुमले कौन से? फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। सुभान अल्लाह, 3 हरफ 2 जुमले कहकर पूरे कुरान का तारुफ बंद कर दिया। सुभान अल्लाह। अब मैंने अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरज पर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज कर दिया। अल्लाह, आपने ये जो सूरह बकरा के शुरू में कुरान का तारुफ कराने से पहले ये जो 3 हरफ कहे हैं ना, अलिफ लाम मीम, अल्लाह ये क्या है? इनका माना क्या है? इनका मतलब क्या है? इनकी वजाहत क्या है? इनकी तफसीर, तशरीह, ट्रांसलेशन, मफहूम क्या है? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है। आम उलमा, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, मुअल्लिफीन, मुदर्रिसीन, मुसन्निफीन वो तो लिखते हैं वल्लाहु आलम कि इन हुरूफ मुक़त्तआत का माना, मतलब, वजाहत, तफसीर, तशरीह, ट्रांसलेशन, मफहूम क्या है अल्लाह जानता है। लेकिन कुछ अहले दिल ने अपने आइडियाज, अपने गेस और अपनी विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा है कि ये अलिफ लाम मीम देखने में तो 3 हरफ है, लेकिन हकीकत में ये 3 कस्में हैं। अलिफ भी कसमिया, लाम भी कसमिया, मीम भी कसमिया। अल्लाह कौन सी कसमें उठाई? फरमाया अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह क्या मतलब? ये कसमें क्यों उठाई? जरूरत क्यों पड़ी? आप बगैर कसमों के बात करते, हम तो भी मानते, लेकिन आपने कसमें क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि अगर 14वीं सदी का कोई जिंदीक, 14वीं सदी का कोई मुर्तद, 14वीं सदी का कोई चूड़ा, 14वीं सदी का कोई खटमल, 14वीं सदी का कोई काला, 14वीं सदी का कोई बद्दुल ज़िना, अगर तुम्हें कुरान के बारे में शक डालना चाहे तो फिर उस चूड़े की बात पे एतबार न करना, मेरी कसमों पे एतबार। सुभान अल्लाह। इसलिए फरमाया मैंने 3 कसमें उठाई। अरे मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाओ मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, खबरदार किसी खटमल की बात पे न जाना, मेरी कसमों को याद रखना। मैंने फिर सवाल कर दिया। उम्मीद है अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले नज़र, अहले इश्क मेरे जुमलों पे तवज्जो करें। मैं जिगर का खून दे रहा हूँ, रस्मी तकरीर नहीं कर रहा। हाँ, पूरी तवज्जो रहे। अल्लाह, बात समझ आ गई कि आपने ये कसमें कुरान की सदाकत के लिए उठाई, कुरान की अज़मत और हक़ानियत बताने के लिए उठाई। लेकिन अल्लाह ये तो बताएं, आपने कसमें तौरात में भी उठाई, इंजील में भी उठाई, ज़बूर में भी उठाई, कुरान में भी उठाई, लेकिन वहां कसमें कोई और थी, यहाँ कसमें कोई और है। मैंने कुरान में और जगह पे भी देखा आपने कसमें उठाई, लेकिन कहीं जमीन की कसम, कहीं ज़मान की कसम, कहीं मकीन की कसम, कहीं मकान की कसम, कहीं सूरज की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं जमाने की कसम, कहीं वक्त की कसम, कहीं शहर की कसम, कहीं गलियों की कसम, कहीं चेहरे की कसम, कहीं जुल्फों की कसम, कहीं सीने की कसम, कहीं मदीने की कसम, कहीं चादर की कसम, कहीं कंबल की कसम। लेकिन यहाँ वो कसमें नहीं, बल्कि और कसमें उठाई। अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम। अल्लाह इनकी जरूरत क्यों पड़ी? फरमाया इसलिए कि कुरान का ताल्लुक मेंसी वालों और करोड़ पक्का वालों, मोहम्मद सही वालों, बड़े पुराने लोग हो, मजहबी लोग हो, उलमा के मुतकीदीन हो, मेरे जुमलों को ज़ाहिर न करना, दिल के कंप्यूटर में सेव करना। अल्लाह आपने ये 3 कसमें क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि कुरान का ताल्लुक हम तीनों से था। भेजने वाला मैं, लाने वाला जिब्रील, लेने वाला मोहम्मद। मैंने इसलिए ये 3 कसमें उठाई ताकि तुम्हें दुनिया का कोई मुर्तद अगर 14वीं सदी में कहे कि जिब्रील कुरान लाया तो किसी और के लिए था, भूल कर मोहम्मद के पास चला गया, मैंने उसकी वजाहत शुरू
मैंने इसलिए शुरू में ये 3 हरफ बोले ताकि समझने वाले समझ जाए। ये भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाला जिब्रील है, जिसके लिए आया वो मोहम्मद है। कह दो सल्लल्लाहु, बुलंदाबाद से कह दो सल्लल्लाहु, ताकि कोई चूड़ा ये ना कह सके जिब्रील भूल गया, हाँ चाहिए तांदा कहीं भेज दो, भूलते हजूर दो भेजा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, उसकी बात पे लानत भेजना, उसे कहना अलिफ लाम मीम तो पढ़। अल्लाह ने तो कुरान के तारुफ के शुरू में ही कह दिया अलिफ भेजने वाला मैं हूँ, लाम लाने वाला जिब्रील है, मीम लेने वाला मोहम्मद है। आओ अब आगे चलते हैं। मैं इसी अलिफ लाम मीम पे भी घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन वादा वाला जाट बिराजो वापस ले सक आखिर पूरा घंटा खड़ा था अलिफ लाम मीम पे रह गया। एक आखिर जो इल्म इतना है अलिफ लाम मीम नहीं मुकाने चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह ने इन 3 कसमों के बाद ऐलान क्या किया? फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये किताब ला रैब, ये किताब बेऐब, ये किताब शक व शुबा वहम गुमान तरद्दुद रायबा शायबा मीडिया से भी पाक। मैंने फिर सवाल कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने फिर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज कर दिया इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरफ पर। अल्लाह आपने 3 कस्में उठाने के बाद जब कुरान की सदाकत और हक्कानियत और मेयार हक होने की बात की तो आपने ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह कहा कि ये किताब ला रैब है। हालांकि चाहिए तो ये था यहाँ ज़ालिकल कुरान ला रैब फीह होता कि ये कुरान ला रैब है, ये कुरान सच्चा है, ये कुरान पक्का है, ये कुरान अच्छा है, ये कुरान तब्दील शुदा नहीं है, ये कुरान मेरी किताब है। अल्लाह मैंने तो कुरान में जहाँ भी गौर किया मुझे इस कुरान का जिक्र जहाँ भी मिला मुझे अक्सर जगह पर लफ्ज़ कुरान नजर आया। यासीन वल कुरानिल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद इन्ना हाज़ल कुरान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह हर जगह पर लफ्ज़ कुरान नजर आया, अल्लाह हर जगह पर लफ्ज़ कुरान नजर आया, लेकिन यहाँ पर आपने लफ्ज़ कुरान नहीं कहा। अल्लाह क्या वजह? चाहिए तो ये बैठ जाओ, भी जनरेटर नहीं चलाना, बैठ जाओ, मैं खत्म कर रहा हूँ। जनरेटर के शोर में मैं नहीं बोल सकता। नारे तकबीर, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे तकबीर। या बासी, या बासी जिंदाबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी आसी, कल भी आसी, रात भी आसी, डे भी आसी। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं बात को खत्म करने चला हूँ। आखिरी चंद जुमले हैं, तवज्जो से सुनना। अल्लाह आपने ज़ालिकल किताब क्यों कहा? चाहिए तो ये था कि ज़ालिकल कुरान होता, लेकिन आपने कुरान का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, ज़ालिकल किताब कहा। तो कायनात के रब की तरफ से मुझे फिर जवाब शिकवा मिलता है कि मैंने अगर ज़ालिकल कुरान कहा होता, मैं इलाका वालों मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, अगर मैंने ज़ालिकल कुरान ला रैब फीह कहा होता तो 14वीं सदी का चूड़ा, 14वीं सदी का मलंग, 14वीं सदी का चरसी, 14वीं सदी का हिरोइनची, 14वीं सदी का नशई तुम्हें कह सकता था कि अल्लाह ने तो कुरान को सच्चा कहा। ये कुरान नहीं, कुरान तो वो है जो गारों में पड़ा है, कुरान तो वो है जिसके 40 पारे, कुरान तो वो है जिसके 10 पारे बकरी खा गई। कुरान को तो हम भी मानते हैं, लेकिन ये कुरान नहीं, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है। अल्लाह ने कहा मैंने उस दज्जाल का पर्दा चाक करने के लिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा कि मेरे नबी की उम्मत के लोगों ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। शान कुरान, शान कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, नारा तकबीर। मैंने इसलिए ज़ालिकल किताब कहा, ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ताकि कोई मलंग चूड़ा तुम्हें धोखा न दे सके। उसी अल्लाह सीधा कुरान को सच्चा के कुरान थोड़ा है, कुरान तक गारे च लुकाई बैठे क्या मत बाद उसी उनके तो 40 ही पारे हम। अल्लाह फरमाए ना, मैंने इसलिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, मैं तो अल्लामुल गुयूब था ना, मुझे पता था 14वीं सदी के मुर्तद ये दावा करेंगे, मैंने इसलिए ज़ालिकल किताब कहा। उलमा बैठे हैं, पूछ लेना ज़ालिका इसमें इशारा है, फरमाया ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, सुभान ये किताब जो तू पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। उसके आगे अब इन 2 जुमलों में अल्लाह ने पूरे कुरान का तारुफ समो दिया, समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। आगे हुदल लिल मुत्तकीन के बाद अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब से आगे तफसीर
कुरान बिल कुरान है, ये मेरा अलग उन्वान है जिसके लिए मुझे घंटा डेढ़ अलग चाहिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मैं हाज़िरी भी दूंगा और इसी उन्वान को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। अभी दस्तार बंदी भी होनी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान पर अमल करने की, कुरान पढ़ने की और कुरान से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादो आबाद रखे, इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। दस्तारबंदी कराओ भाई। मैंने आपके लिए